Students, a very good morning to all of you. So in the same series of FE, up to exercise 5.1 we have completed. Okay, now moving further in the same series, that is exercise 5.2. In that you will find nth term, 10th term, or the terms which I have asked in the questions. Is it? So very first question, exercise 5.2. What is given? Question number 1. Second part we are going to solve. That is an AP is given under root 2, 3 under root 2, 5 under root 2. Which term we have to find? We have to find 18th term. Is it? So how we will do? Very first that first term is given, that is square root of 2. Then we have to find out distance. Difference will be second term minus फर्स्ट टर्म, दैट इज 3 अंडर रूट 2 माइनस रूट 2. बेटा अगर ये रूट में आ रखे हैं, इनको अपन कैसे सोल्व आउट करेंगे? अंडर रूट 2 विल बी कॉमन, दोनों से अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है. दैट इज हियर द रिमेनिंग पार्ट इज 3 माइनस हियर द रिमेनिंग पार्ट इज 1, विच मीन्स 3 माइनस 1 दैट विल बी 2, विच मीन्स डिफरेंस विल बी 2 अंडर रूट 2. आफ्टर दैट nth term, that is n equals to 18 because we have to find 18 term, so value of n will be 18. What is the formula for nth term? That is an is equals to a plus n minus 1 into d, which means a 18 we have to find out. Value of a is root 2 plus n minus 1, that means 18 minus 1 multiply by d. What is the value of d? That is 2 under root 2. बेटा यही है. ओके, किया आ गया अंडर रूट 2 प्लस 18 माइनस 1 17 मल्टीप्लाई टू रूट 2, विच मीन्स रूट 2 17 टू जा 34. कितना आ गया? 34 रूट 2. 34 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना बन जाएगा? 35. बेटा अगर डायरेक्टली अगर नवा को देखो कैसे करते हैं इनको, जैसे मैंने कहा 34x प्लस x कितना होगा? 35x होगा कि नहीं होगा? ये भी एक रेशनल नंबर है, इनको अपने वेरिएबल तरह रीड कर लेंगे. केवल मैं ये नहीं कह रहा कि वेरिएबल है, मैं कह रहा हूँ केवल इसकी तरह समझ लेंगे, एक बार इमेजिन कर लेंगे. दैट इज दिस इज ऑल्सो ए वेरिएबल. दैट मीन्स 34x प्लस x विल बी 35x, और वी कैन से 35 अंडर रूट 2. इसका आंसर हो गया. कौन सी टर्म है ये? 18th टर्म. रिमेनिंग 2 पार्ट दैट यू हैव टू डू. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2. सोल्व फर्स्ट पार्ट. व्हाट इज गिवन फर्स्ट पार्ट? Which term of AP? AP is given 21, 18, 15 is minus 81. कौन सी टर्म माइनस 81 होगी? अपने से ये पूछा है. तो बेटा कैसे निकालेंगे देखना. वेरी फर्स्ट यहाँ से A क्या होगा? A विल बी 21. A कितना होगा? 21 होगा. D निकाल रहे हैं. D दैट मीन्स A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2. तो भी दो डिफरेंस देख लेंगे, A2 minus A1 और A3 minus A2. That means value of A2 will be 18 minus value of A1 will be 21, or we can say value of A3, that means third term is 15 minus second term, that is 18. So 18 minus 21 that will equals to minus 3, and 15 minus 18 that is also equals to minus 3. That is difference is same. We say that value of D, that is common difference is minus 3. Is it? And the last term which I asked, इसी को अपन लास्ट टर्म मान लेंगे, फिर nth टर्म मान लो. जो माइनस 81 इसमें पूछा है उसको या तो लास्ट टर्म मान लेंगे या फिर nth टर्म, विच इज an लास्ट टर्म और nth टर्म दैट विल बी minus 81. वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज विच टर्म इज minus 81, दैट वी हैव टू फाइंड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज a इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d. लास्ट टर्म इज minus 81. Minus 81 equals to very first term, that is 21 plus value of n we have to find out. Is it? And what is the difference? Difference is minus 3. But difference कितना है? Minus 3. So how I will find? Very first, this is plus 21. If you transpose it, it will be minus. So minus 81 minus 21. But इसको transpose कर दिया. After that, n minus 1 multiply by minus 3. minus 81 minus 21 that will be 102. बेटा दोनों साइन माइनस के हैं, मतलब नंबर्स ऐड करेंगे. इफ बोथ द साइन आर सेम, दोनों साइन सेम है, दैट इज वी हैव टू ऐड द नंबर्स. नंबर ऐड करेंगे बट साइन किसका आएगा? नेगेटिव आएगा.
So 80 plus 20, that is 100. 1 plus 1, 2. 102. After that equals to n minus 1 multiplied by minus 3. Here minus 3 is in multiply. So if we transpose it, it will be in divide. So n minus 1 equals to minus 102 divided by minus 3. ये बेटा किस में था? मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया तो किस में हो गया? डिवाइड में. दैट इज माइनस माइनस कैंसिल आउट. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. सो वैल्यू ऑफ n minus 1 इक्वल्स टू n minus 1 इक्वल्स टू 34. इज इट? n minus 1 वैल्यू कितनी है? 34 है. सो वैल्यू ऑफ n विल बी 34. Here minus 1 is given. If we transpose it, it will be plus 1. That means n equals to 35. Which term is minus 81? जो अपने AP DS में ये पूछा ना, कौन सी टर्म माइनस 81 होगी? That means 35th टर्म है, वो कितनी होगी? माइनस 81 होगी. क्लियर है? नेक्स्ट वन, सेकेंड पार्ट, सेम क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन सेकेंड पार्ट? दैट 84 80. ये बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर ये जितने पार्ट्स हैं सब इंपॉर्टेंट है. दैट्स आई वांट टू टेल यू. 76 विच टर्म विल बी 0? कौन सी टर्म 0 है? मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे पुटअप. अपन लास्ट टर्म L इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया. इसी को अपन लास्ट टर्म मान लेंगे. लास्ट टर्म इज 0 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ A इज 84 प्लस n माइनस 1 वैल्यू ऑफ n वी हैव टू फाइंड आउट एंड वैल्यू ऑफ D विल बी 80 माइनस 84 माइनस 4 आएगा बेटा. हाँ या ना? D कितना आ गया? माइनस 4. दैट मीन्स ये प्लस 84 है. इफ यू ट्रांसपोज इट विल बी माइनस 84 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4. इज इट? दैट मीन्स वैल्यू ऑफ n माइनस 1 विल बी माइनस 84. Here minus 4 is in multiply, so after transpose it will divide. That means 21. 84 divided by 4, that is 21. So value of n minus 1 equals to 21. So n equals to 21. ये माइनस 1 दिया हुआ है, ट्रांसपोज करके किसका हो जाएगा? प्लस 1. दैट मीन्स कितना आ गया? 22. कौन सी टर्म 0 होगी? 22nd टर्म. ठीक है. पार्ट 3, सेम क्वेश्चन. Is minus 150 any term of AP 11 8 5 2? इसकी कोई टर्म ये पूछा कि माइनस 150 होगी या नहीं होगी. अपन इसको लास्ट टर्म मान लेंगे. ठीक है. अगर इसकी वैल्यू n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आई, सबसे पहले तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए. n की वैल्यू कभी भी नेचुरल नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता. ठीक है. इसका मतलब नेचुरल नंबर बात करें ना तो ये फ्रैक्शन में आना चाहिए, ना ये डेसिमल में आना चाहिए, ना ये नेगेटिव आना चाहिए. कभी सुना है कि आपने कभी किया ऐसा कि वो अपने से 4.5 नंबर पे खड़ा है? कभी लाइन में ऐसा है, कभी अपन लाइनअप करते हैं, लाइनअप में कभी ऐसा हुआ है क्या कि वो 1.5 प्लेस पे खड़ा है? मतलब प्लेसेस करेंगे, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, ये आता है. कभी रैंक आई है कि 4.5 रैंक है उसकी, 4.5 रैंक है उसकी? ये कभी नहीं होता. मतलब n की वैल्यू है, अपन नंबर्स की बात है ना, कभी नेचुरल नंबर क्या हो नहीं सकता. ऑल विल दैट विल बी इन नेचुरल. दैट मीन्स हियर लास्ट टर्म, लेटर लास्ट टर्म इज माइनस 50. Last term, later last term is A plus n minus 1 multiplied by D. Last term is minus 150 equals to A plus A कितना 11 and we have to find out value of D is minus 3. Value of D is minus 3. That means n minus 1 multiply minus 3, that will be minus 150 minus 11. Minus 150 minus 11 आ गया. कितना हो गया? माइनस 161 हो गया. सो n माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 161 डिवाइडेड बाई माइनस 3, बिकॉज माइनस 3 यहाँ किस में? मल्टीप्लाई में. इस साइड आएगा तो डिवाइड में. ये देखो डिविजिबल है, 3 5 जा डिविजिबल नहीं है. n क्यों निकालेंगे? n क्या आएगा? 161/3. ये क्या है? माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस 1. दैट मीन्स 164/3 आ रहा है. ये बेटा डिविजिबल नहीं है. डिविजिबल नहीं है तो n की वैल्यू, ये टर्म इसके अंदर जो अपने पास स्पेस दी है इसमें पॉसिबल नहीं है. ठीक है. मतलब फिर समझ लेना कि कभी अपने सुना है कि n की वैल्यू कभी ऐसे लाइन अप करते हैं, कोई अपनी रैंक आती है कि सर उसके फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक, लास्ट रैंक ये आई है कि उसका 1000वां नंबर आया है, उसके रैंक ये आई है, उसे उस प्लेस पे है. कभी डेसिमल में आता है क्या? इस अपन कहते हैं तो इसके कितने नंबर है? नंबर 4.5 आ सकते हैं. प्लेस हो सकती है कि उसके 4.5वीं रैंक है, 4.5 रैंक है उसकी, 2.5 रैंक है उसकी, या 2.5 प्लेस के ऊपर खड़ा हुआ है. ऐसा कोई प्लेस होता है? नहीं होता.
अपन लाइन अप करते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस ये आते हैं डायरेक्ट, मतलब नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। एन क्या होगा, एन के लिए हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। बाकी किसी भी अंदर भी अगर एन आ रहा है दैट मीन्स वो पॉसिबल ही नहीं है, वही सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। इज इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 3? 6 term and 17 row APR, A6 is 19 and 17th term that is 41. 17th term क्या है? 41 है। We have to find A40 मतलब 40th term we have to find out. Is it? बेटा कैसे करेंगे? A6 दिया हुआ है, A6 मतलब क्या हो गया? A plus 5D, मैंने आपको पहले ही बता दिया। A6 क्या होता है? A plus 5D होता है। A71 क्या हो गया? A plus 16D इक्वल्स टू 41। इलिमिनेशन मेथड से अपन को एलिमिनेट करेंगे, A को एलिमिनेट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, दैट मीन्स माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज होनी, ये कैंसिल आउट हो गया। 5 माइनस 16 दैट मीन्स माइनस 11D एंड 19 माइनस 41 दैट इज 22 माइनस 22। वैल्यू ऑफ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, D कितना हो जाएगा? 22 अपॉन 11 दैट इज 2। वैल्यू ऑफ D इज 2। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, A एज इट इज प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ D इज 2 इक्वल्स टू 19, दैट मीन्स A विल बी A प्लस 10 इक्वल्स टू 19, सो A विल बी 19 माइनस 10 दैट इज 9। A की वैल्यू कितनी आ रही है? 9 आ रही है। क्लियर है? सो नाउ वी हैव टू फाइंड A40, दैट मीन्स 40th from A40 that is equals to A plus 39D, A plus 39D. Value of A is 9 plus 39 multiplied by value of D is 2. Value of D is 2. So it will be 9 plus 39 multiplied by 2 is 78. On addition we will get 87. A40 क्या आएगा? 87। क्लियर है? आई बात सुनने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो वैसे तो, चलो बता रहा हूँ आपको। व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 4? दैट इज थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ PR। A3 कितना दिया हुआ है? A3 इज 4 एंड 9th टर्म A9 इज -8। वी हैव टू फाइंड विच टर्म इज 0, मतलब nth टर्म 0 मान लिया अपन ने। nth टर्म क्या है? 0। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकालना पड़ेगा। देखो बेटा, A3 दैट मीन्स A प्लस 2D इक्वल्स टू 4 एंड A9 दैट मीन्स A प्लस 8D दैट इज इक्वल्स टू -8। सब्ट्रैक्ट देम, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का क्या हो गया? प्लस हो गया। ये कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया? 2 माइनस 8 दैट मीन्स -6D इक्वल्स टू 8 प्लस 4 12। वैल्यू ऑफ D विल बी 12 अपॉन -6 दैट मीन्स -2। D की वैल्यू कितनी आ गई है? -2 आ गई है। क्लियर है? वैल्यू ऑफ A विल बी, पुट द वैल्यू ऑफ D हियर, दैट मीन्स A प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ D इज -2 इक्वल्स टू 4। So value of A will be A minus 4 equals to 4, A equals to 4 plus 4 that is 8। A की वैल्यू कितनी आ गई है? 8 आ गई है। और नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए, डायरेक्ट लिख लें। AN equals to A plus N minus 1 multiplied by D। So nth term that is 0, that will be equals to first term will be 8, first term is 8 plus value of N we have to find out, and the difference is -2. What is the difference? Difference is -2. That means here plus 8 is given, if we transpose it, it will be -8। बट ये क्या करना? -8 हो गया। n minus 1 multiply by -2 हो गया। So value of n minus 1 will be -8. Here it is in multiply, so if you transpose it, it will be in divide. Is it? So minus minus cancel out, 2 1 जा 2 4 जा, n minus 1 equals to 4. So value of n will be 4. Here minus 1 is given, if you transpose it, it will be plus 1, that means value of n will be 5. This term is 0,
दैट मीन्स फिफ्थ टर्म इज जीरो। इस एपी की फिफ्थ टर्म क्या आएगी, जीरो आएगी। अपन ये निकालना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 16, थर्ड टर्म इज गिवन A3, third term is 15, 16 and seventh term is 12 more than fifth term। सेवन्थ टर्म है वो 12 मोर है, 12 ज़्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से। मतलब इसके अंदर 12 ऐड करना पड़ेगा तभी दोनों बराबर होंगे। ये तो कहा ना, इसने कहा कि सेवन्थ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, मतलब सेवन्थ टर्म है वो 12 ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से। ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है, इसमें 12 ऐड कर देंगे दोनों इक्वल हो गई। ठीक है, देखो अब आगे करते हैं। ये क्या बनेगा, क्या निकालना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड एपी। एपी निकालनी है। ए सेवन टर्म दैट मीन्स ए प्लस 6d इक्वल्स टू ए प्लस 4d प्लस 12 है एज इट इज। हाँ या ना, क्लियर है। देखो ए प्लस के साइड आएगा तो माइनस से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12 आ गया, दैट मीन्स 2d इक्वल्स टू 12। वैल्यू ऑफ d विल बी 12/2 दैट इज 6। डी कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। A3 दिया हुआ था दैट मीन्स A प्लस 2d इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। A कितना है, A जितना निकालना है। D कितना है, 6 है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू 16। सो A प्लस 12 इक्वल्स टू 16। वैल्यू ऑफ A विल बी 16 माइनस 12 दैट इज 4। ए की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 4। अपने ए पे निकाल लिए, फर्स्ट टर्म 4, फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड कर दें, सेकंड टर्म आ जाएगी दैट मीन्स 4 प्लस 6 10। सेकंड टर्म में फिर डिफरेंस ऐड कर दो, 10 प्लस 6 16। इसमें फिर डिफरेंस ऐड करेंगे, 16 प्लस 6 22। ये आ गई अपनी ए पी। क्लियर है, आई बात समझ। ओके नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कितने 3 नंबर डिजिट हैं वो 7 से डिविजिबल हैं। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं कैसे निकालेंगे। बेटा फर्स्ट नंबर क्या होगा, 3 डिजिट नंबर, सबसे पहला स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यही है, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, कितना बन गया 3 0। मतलब यहाँ पर 5 होता तो कंप्लीट डिविजिबल हो सकता था, यहाँ पर 5 होता तो कंप्लीट डिविजिबल हो सकता था। दैट मीन्स यहाँ पर 5 आना चाहिए। फर्स्ट टर्म आएगी 105, सेकेंड टर्म 112, 7 ऐड कर देंगे। लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म के लिए डिवाइड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बाई 7। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर यही है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज ट्रिपल 9 डिवाइडेड 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 2 बाई 9, 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 1। तो बेटा यहाँ पर देखो एक आने बाद क्या आना चाहिए, 4 ही ऐसा नंबर है जो यहाँ पर आने से कंप्लीट डिविजिबल है। मतलब इसकी जगह कितना होना चाहिए था 4। एपी कहाँ तक जा रही है 994 इज इट। सो फर्स्ट टर्म विल बी ए विल बी 105, डी विल बी 7 एंड द लास्ट टर्म nth टर्म और लास्ट टर्म दैट विल बी 994 इज इट। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सो लास्ट टर्म L इज इक्वल्स टू a प्लस n minus 1 multiplied by d. So here the value of L is 994, value of A is 105 plus n we have to find out, value of D will be 7. 994 here plus 105 is positive, so if you transpose it, it will be negative. That means minus 105 equals to n minus 1 multiplied by 7. 994 दिया हुआ है, 105 निकालेंगे दैट मीन्स 889 है ना, इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7। यहाँ से देखना अगर n माइनस 1 रखने केवल ये 7 किस में मल्टीप्लाई में, इफ़ यू ट्रांसपोज इट विल बीन डिवाइड दैट मीन्स 889 डिवाइड बाई 7। व्हाट विल गेट 7 1 जा 7 18 दैट मीन्स 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। value of n minus 1 will be 127. So value of n will be 127 plus 1 that is 128. कितनी टर्म ऐसी हैं जो 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट नंबर्स कितनी है 127 ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। क्लियर है बेटा, आई बात समझ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर
7. Find the 11th term. A11 we have to find out from the last से निकालनी बेटा, ये ध्यान रखना ना. AP क्या दिए 10, 7, 4 अप टू -62, माइनस का 62. बेटा इसके पहले जो नंबर आएगा वो ये आएगा ना, 3 का डिफरेंस चल रहा है -3 का, मतलब इसमें 3 ऐड कर देंगे. 3 ऐड करना मतलब क्या हो गया -59. अब एक चीज़ इसने क्या कहा, वी हैव टू फाइंड द टर्म फ्रॉम द लास्ट से निकालना है. इस AP को चेंज कर दिया अपन ने. देखो ये फर्स्ट टर्म लिया, ये -59, आगे जाएंगे तो 4, 7, 10, ये लास्ट से हो गया ना. लास्ट से निकाला मतलब क्या था कि इस साइड से निकालनी टर्म, ये बात थी. अगर इस AP को जो अपने AP दी है अगर उसको चेंज कर देंगे दैट मीन्स अब कहाँ से हो गया, स्टार्टिंग से हो गया. इज इट वैल्यू ऑफ A विल बी A इक्वल्स टू -62 एंड nth टर्म दैट इज लास्ट टर्म दैट इज 10. इज इट अपने उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो. देखो आफ्टर दैट D कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे बेटा, प्लस का 3 आएगा. आप चाहे कर लेना, मतलब ये तो करते हैं ना. 10 - 7 3 आ रहा है, 7 - 4 कितना आ रहा है 3 आ रहा है. डिफरेंस विल बी 3. वी हैव टू फाइंड A11 विल बी A प्लस 10D. सो वैल्यू ऑफ A इज -62 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई D इज 3. दैट मीन्स -62 प्लस 30 दैट विल इक्वल्स टू -32. कितना आ गया -32. लास्ट टर्म से कौन सी टर्म होगी, 11th टर्म होगी, -32 विल बी द आंसर. नेक्स्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट से 12th टर्म. इस बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लास्ट से 12th टर्म. AP is given 1, 4, 7 अप टू लास्ट 88 आता है. इसका मतलब डिफरेंस 3 ऐड कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें 3 ऐड हुआ है, मतलब 85 था. यही बात है. अपने फिर बता रहा हूँ कि अगर लास्ट से अपना नंबर निकालना है, इस AP को चेंज कर देंगे, इसको लास्ट का टर्म है वो फर्स्ट ले जाएंगे, फर्स्ट को उसको लास्ट में ले जाएंगे. इससे क्या हो जाएगा अपने ईजी हो जाएगा काम. कैसे कि बेटा अपने को इस साइड से निकालना था, इस साइड से निकालना था ना, अब इस साइड से निकाल सकते हैं. फर्स्ट टर्म इसी को मान लेंगे, A इक्वल्स टू 88 हो गया. D निकालेंगे 1 - 4 -3, 4 - 7 -3, D कितना आ गया -3. दैट मीन्स A12 वी हैव टू फाइंड आउट A प्लस 11D. वैल्यू ऑफ A इज 88 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ D इज -3. सो 88 प्लस मल्टीप्लाई माइनस दैट विल बी -11 3 जा 33. दैट मीन्स 55. लास्ट टर्म से कौन सी होगी, अपन चेक करें. लास्ट से 12th टर्म क्या हो जाएगी 55. क्लियर है, आ रहा समझ? किसी को स्पीड का इशू लग रहा है बेटा, इसके बेसिक कंप्लीट कर लिया अपने बहुत आराम से. कैलकुलेशन पार्ट है वो अपने स्पीड जैसे करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 9? देयर आर 60 टर्म इन AP. द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर n कितना है 60 टर्म दिया हुआ है. देयर आर 60 टर्म इन एन AP दैट मीन्स वैल्यू ऑफ n विल बी 60. फर्स्ट टर्म इज A1 और A दैट विल बी इक्वल्स टू 7 and last term nth term that will be or last term that will be 125. Is it? What we have to do? Find its 32th term. A 32 निकालना बेटा, ये निकालना है. ठीक है. उसके पहले अपने क्या जरूरत पड़ेगी D की. A 32 मतलब क्या हो गया A प्लस 31D. A तो आ गया, ये अपने पास D नहीं है. दैट मीन्स लास्ट टर्म L इज इक्वल्स टू A प्लस n - 1 मल्टीप्लाई बाई D. So L is 125 equals to value of A will be 7 plus n minus value of n is 60. n की वैल्यू कितनी है 60. 60 minus 1 59 multiply by D. 59 multiply by D. So 59D equals to 125. Here plus 7 is given. If you transpose it, it will be -7. That means 118. It value of D will be from here. Value of D will be 118 divided by 59. That means that will be equals to 2. कितनी आ गई बेटा वैल्यू 2 आ गई है. क्लियर है. सो अब यहाँ पर पुट कर देंगे इसके अंदर A32
will be equals to a plus 31d. Value of a is 7 plus 31 multiplied by value of d is 2. 7 plus 62 that will equals to 69. कितना आ गया? 69. Is it? Okay बेटा, last question, and this is the last question of today's lecture. Is it? And last question of exercise 5.2. After that we will start a new exercise, a new basic concept, that is about sum. 4 terms are in AP. If sum is 50 and larger term is 4 times the smallest term. 4 terms दी हुई हैं, अपन मान रहे हैं एक तो a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. These are the 4 terms. If their sum of the number is 50, इन सभी का सम कितना दे रखा है? 50 दे रखा है. फर्स्ट कंडीशन ये लेके चलते हैं, पहले ऐड करेंगे a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू 50. बेटा प्लस का 3d माइनस 3d प्लस d माइनस d कैंसिल आउट. दैट मीन्स 4a इक्वल्स टू 50. 4a कितना आ गया? 50 आ गया. वैल्यू ऑफ a विल बी 50 अपॉन 4, दैट मीन्स 25 अपॉन 2 इक्वल्स टू 12.5. a की वैल्यू कितनी आ गई? 12.5. फिर क्या दिया हुआ इसमें? लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर. लार्जेस्ट नंबर क्या है? यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर देखें, a प्लस 3d अपन लार्जेस्ट नंबर मान रहे हैं, वो 4 टाइम्स है. 4 टाइम्स दे रखा है, हाँ 4 टाइम्स है स्मॉलेस्ट नंबर ये. स्मॉलेस्ट नंबर ये है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 4. ये ऑलरेडी 4 गुना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या आ गया? a प्लस 3d इक्वल्स टू 4a माइनस 12d. हाँ या ना? देखो बेटा 4a है, ये प्लस का a इस साइड आएगा तो माइनस a. ठीक है, ये 3d दिया हुआ है, ये प्लस कितना हो जाएगा? माइनस 12d दिया है, इस साइड आया तो प्लस 12d. दैट इज 15d इक्वल्स टू 3a. सो वैल्यू ऑफ a विल बी 5d. a की वैल्यू कितनी आ रही है? 5d आ रही है. दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी दी अपने को? 12.5. 12.5 इज टू 5 मल्टीप्लाई बाई d. सो वैल्यू ऑफ d विल बी 12.5 अपॉन 5. ये किस में? मल्टीप्लाई में. इस साइड आएगा तो डिवाइड में. 0 उठा रहे हैं, 25 2 जा 25 5 जा, दैट मीन्स 2.5 क्या आ गया? वैल्यू ऑफ d कितना आ गई? 2.5. राइट. निकालना है क्या अपने को? फाइंड द नंबर्स. सबसे पहला नंबर निकालते हैं. a कितना रखा है? देखो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d. कैसे करेंगे? a की वैल्यू कितनी आई है? 12.5. d कितना आया है? 2.5. फर्स्ट नंबर है a माइनस 3d, दैट मीन्स 12.5 मल्टीप्लाई बाई 12.5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2.5. कितना आ गया? 12.5 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 7.5. कितना बच गया? 5 हो गया. क्लियर है? आफ्टर दैट a माइनस डी, दैट मीन्स 12.5 माइनस 2.5 कितना आ गया? 10. a प्लस डी दैट विल बी 12.5 प्लस 2.5 दैट इज 15. एंड a प्लस 3d विच विल बी 12.5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इक्वल्स टू 12.5 प्लस 7.5. कितना बन रहा है बेटा? 20. सबको ऐड करके देख लो, 50 बन रहा है कि नहीं बन रहा? 5 20 हो गया, 30 एंड 50. और ये इसके 4 टाइम मल्टीप्लाई में है या नहीं है? इसका मतलब कंडीशन सही है, दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसका मतलब सही है. ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टडी.